students, today we have Dr. Sachin Katyal. He's an MBBS, MS, and a faculty in a reputed medical college in Delhi. He has given himself all the USMLE PLAB. He has completed his residency at Jackson Memorial Hospital, USA. He also is an MCH super specialist with 16 years of experience training students for the USMLE, MCI, PLAB. He has a unique teaching style that helps students learn the information while the class is going on. Conceptual training is what he focuses on, long-term, strategy-based preparation. So we welcome, Dr. Katyal on the MOOCs platform. Students, any questions you guys have, feel free to ask. All right, so welcome, sir, and over to you, sir. Any questions which students ask, I will be referring to you on their behalf. So any question which comes up, which is important to be asked, I will be asking, on their behalf to you, sir. Okay, hello everybody. I have been introduced. Thank you for the kind introduction. And I hope I'm addressing to all the students who are curious to become doctors. I have been to all the places that I had joined a while ago. So I was hearing to Sir speak, and he's been helping students to get residency in US, which is a hell of a task. Trust me when I say that I've been through the journey and I know what he's talking about. So I finished my residency in US after completing my MBBS from a government college in India. And then I came back and did my MCH super specialization again in India. I had to get back because of my personal reasons. Okay, so I'm here to talk about this almost the same thing which you've been hearing. All the things that what I just I consolidate the things that sir was telling, that this is the place, this is the right way to go about things, trying getting MBBS in India and then trying to do residency abroad, because that's a wise thing to do. And I've been training people for USMLE, all the steps, like step one, I've been teaching, and I know how it goes, all the changes that have occurred over the years, because I've been teaching since past 16 years. So, and I've even completed PLAB exam, which is a UK based exam. I have finished even the Membership Royal College of Surgeons exam, which is a certificate from UK for surgeons. They have this Royal College of membership of Royal College. So I have taken like almost every exam. I've been to Saudi Arabia too, which I didn't mention here in my introduction. I've worked there as well. So today I'll be talking almost the same thing, but more focused, more pointed about surgery. So if you join MBBS, whether it is a government college or a private college, you will have to go through the pattern which has been introduced from 2019 batch. Since I'm a faculty in Department of Surgery in a college in Delhi, in a reputed college in Delhi, so I know what I'm talking about when it says that there's a whole lot of change now. The way MBBS was being taught before and now, the way the students who will be joining this year will have to go through, and how they will have to be, all the things that are, there's a big change. So whether you're joining a private medical college or a government medical college, the things would be the same. And now MCI has got dissolved, and there is now National Medical Council, which are ensuring that all these changes in the curriculum and the way things are happening are being are there. So I'll be talking of surgery in MBBS. See, since I'm also consolidating the same fact which was told to you by an earlier speaker, that you have to do MBBS in India or even abroad for that matter. But if you want residency in United States, not only in surgery, but there are various choices, there are a lot of choices, and sky's the limit. And all you have to do is just focus on your stuff, focus on learning, and it will be a cakewalk if you follow the steps which are given to you. So it's not that tough. Tough is when you don't know where you rowing your boat. You're in a boat called MBBS, and you just kind of going, and you don't know where you have to go. You just try every place, and you're not guided by right people.
way the things were a few years ago when I probably did MBBS from India. I did not know what's the path to go to. That's why I took PLAB also. I took USMLE. I went to Saudi Arabia because I was not aware how to go about it. I wanted to go do my post graduation elsewhere abroad because I knew that's the smart way to do to get settled early, to get a degree and to make more money. So a lot of things, and even job satisfaction, learning new things, getting more respect after you become a doctor. I knew that part, but I didn't know how. Moksh is going to help you. What I heard from the earlier speaker, I have come to know that it's just the right place where they're going to guide you every step of the moment, and they're going to be there for you. They're going to tell you how to go about, even in your first year, second year, and final year, and things are going to become darn easy, very easy for all of you who are going to embark on this journey of becoming a doctor. जो डॉक्टर तो सब बन जाते हैं, पर एक सक्सेसफुल, एक रिनाउंड, एक आप इंडिविजुअली भी जानते होंगे अपने एरियाज में, there are few doctors who have such a big name and they have like great degrees and they have everything that they want, or कुछ doctors and who are just run of the mill and they could not even do their post graduation. तो obviously कोई भी वो टारगेट तो नहीं करेगा कि जस्ट एक ऑर्डिनरी डॉक्टर बन जाए, जस्ट अनदर. तो लाइक सर सेड कि हर 100 में से एक सुपर स्पेशलाइजेशन तक पहुंचता है. तो दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज. अगर इंडिया में रहकर करना है तो भी कोई मुश्किल नहीं है. इट्स अ लिटिल अपहिल टास्क एंड वो भी आपको फुल गाइडेंस मिलेगा मोक्ष पे. वी आर नॉट टेकिंग अवे our support when you decide to stay in India, do your specialization and then super specialization here in India. But agar abroad jana chahte hain, to you most welcome, because I'm right here and I've been teaching students all over the world. There are a lot of people from South America, from China, and a lot of Asian countries, and I've been teaching over these years, and those have already reached America or they are planning to reach America, and I've been training them for USMLE. तो उसमें सर्जरी अब और स्पेसिफिक हो जाता है because I have a super specialization in surgery. I'm a pediatric surgeon, and so I've been reading surgery for the past, let's say, 10 years, and I've been teaching everything from medicine, starting from physiology to biochemistry and everything in USMLE to a lot of students. So आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी. दिस आई कैन गाइड यू विद. बट आज सर्जरी की बात करें तो सर्जरी क्यों इम्पोर्टेंट है एमबीबीएस में? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इट्स अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू नीड टू पास in your final MBBS in order to get the degree. और अब क्या हुआ है न्यू करिकुलम से, दैट द सर्जरी एंड मेडिसिन एंड OBGYN एंड पीडियाट्रिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स का देयर विल बी एन एक्सपोजर राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर. So all those people who have joined MBBS will be introduced to all the clinical branches in a very early, in a very formative stage. And there are more like competencies. What are competencies in MBBS? They're saying that we need to set up a set of learning objectives. कुछ एक important चीजें सेट कर दी हैं NMC ने कि इन competencies को अचीव करना ही है through development of something known as SLOs, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू. वो कॉम्पिटेंसीज एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर की अलग हैं, सेकेंड ईयर की अलग हैं, फाइनल ईयर की अलग हैं, और इंटीग्रेटेड लर्निंग करनी है सारा. जब हम सर्जरी पढ़ रहे हैं तो वी नीड टू गो बैक एंड सी व्हाट्स द सर्जिकल एनाटमी लाइक, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, क्या पैथोलॉजी है, क्या बायोकेमिस्ट्री उसका है. तो फर्स्ट ईयर से ही यू विल बी इंट्रोड्यूस टू ऑल अप्लाइड स्टफ, द वे थिंग्स आर हैपनिंग इन यूएस. अब इंडिया में भी होना शुरू हो जाएगा. सो थिंग्स आर गोना बिकम मोर स्ट्रीमलाइन फॉर यू गाइस. जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसा नहीं था. हमें जब यूएसएमएलई करने लगे तो एक नए तरीके से पढ़ाया गया सब कुछ एमबीबीएस, और खुद पढ़ा हमने. पर अब क्या है, अब इंडिया में ही करिकुलम इस तरह से फॉर्मेट किया गया है कि यू विल हैव टू लर्न द वे यूएस वांट्स यू टू लर्न. सब कुछ अप्लाइड. आपका फिजियोलॉजी जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स जो एमबीबीएस के, उसका सर्जिकल बैकग्राउंड बताएंगे कि सर्जिकल में क्या यूज होगा इस फिजियोलॉजी का, इस बायोकेमिस्ट्री पॉइंट का जो आप सीख रहे हैं वो सर्जरी में क्या यूज होगा. तो वो बिगिनिंग से ही आपको बिल्डअप करने के लिए रेडी हैं करने के लिए. एंड दैट्स व्हाट इवन एनएमसी वांट्स. सो व्हाट द एजेंडा इज टू मेक पीपल एट पार विद द ग्लोबल ग्रेजुएट्स इन मेडिसिन जो भी होते हैं, और जो आगे इजी हो जाए लोगों को बाहर जॉब्स करना
ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं, देयर इज अ सेपरेट एग्जाम फॉर दैट। एंड इफ यू वांट टू वर्क इन यूएस, कनाडा और यूके, तो वहां के लिए आप लोग इक्विप हो जाए, आपको न्यू लर्निंग ना करना पड़े, एमबीबीएस करने के बाद 1 साल एक्स्ट्रा वेस्ट ना करना पड़े पढ़ने के लिए कि वहां यूएसएमएलई के लिए कैसे पढ़ना है, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। तो we'll be talking of importance of surgery, we'll be talking of competencies का importance, then वो मैंने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, आगे और बताऊंगा मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको अगर आप ज्वाइन करते हो मोक्ष की ऑनलाइन सेशंस और क्लासेस, एंड आई एम वन ऑफ द फैकल्टी विद देम, so you will get me along with the books that I'm going to tell you कि क्या पढ़नी है, उनकी guidance, and then I'll be telling about my teaching methodology, then I'll be telling about कि क्या weightage है surgery और surgical allied branches और स्पेशलिटीज का इन एमसीआई का, जो एमसीआई तो बोल्ड हो गया, जो नेक्स्ट एग्जाम है और यूएसएमएलई में, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो इम्पोर्टेंस इज इट्स अ की सब्जेक्ट दैट यू नीड टू पास। इसके बिना आप जब सर्जरी के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, और एक सडन जर्क नहीं अब लगेगा, यू नो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता था, क्लिनिक स्टार्ट होते थे, जो एमबीबीएस ज्वाइन करते थे फर्स्ट ईयर सिर्फ पढ़ते थे 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब क्या होगा, and they were never asked to go to hospital to learn the clinical aspects, but अब से they will start having the exposure। जो जो फिजियोलॉजी में पढ़ा है उसको वो सर्जरी में क्या यूज है उसका फिजियोलॉजी का पढ़ा हुआ, they will be taught। so now they're integrating everything। फिर सेकेंड ईयर आता था जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते थे, पैथोलॉजी, देन फोरेंसिक साइंस, देन यू यूज्ड टू हैव फार्माकोलॉजी एंड देन माइक्रोबायोलॉजी। और तब एक्सपोजर शुरू हो जाता था सर्जरी में, आप ओपीडीज आते थे, इन पेशेंट आते थे, पेशेंट से मिलते थे, ओटीज में आते थे। तो सेकेंड ईयर से बिल्डअप तो शुरू होता था, बट देन अब फर्स्ट ईयर से बिल्डअप होगा। सो इट्स अर्ली एक्सपोजर, राइट। सो नाउ एमबीबीएस करते करते यू विल हैव टू गेट ओरिएंटेड टू सर्जिकल पैथोलॉजीज। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको हम और अच्छे से वी विल शो to you guys how to approach and how to make best use of what you've been given the clinical stuff at your college। किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं, कहाँ पे एनर्जी लगानी है, और कब आप यूएसएमएलई के लिए तैयार हो जाएंगे, you won't even know। So you will get oriented with the surgical pathologies early in MBBS, and this will help you retain your pre and para clinical subjects better। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि फाइनल ईयर तक आते आते दे डोंट रिमेम्बर देयर प्री एंड पैरा, द क्वेश्चंस दे आर नॉट एबल टू सॉल्व। जो नीट एग्जाम होता था उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस आते हैं, एनाटमी के क्वेश्चंस, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर में 5 साल के बाद पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली वो न्यू लर्निंग की तरह पढ़ते हैं। पर अब इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या होगा, एवरीथिंग विल बी लिंक्ड, यू विल हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। जब सर्जरी पढ़ रहे हैं यू हैव टू रीड फिजियोलॉजी ऑफ दैट सर्जिकल पैथोलॉजी, कि वो एक चीज की ऑपरेट जो कर रहे हैं, ऑपरेट क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई फिजियोलॉजी में उस पेशेंट की। फिजियोलॉजी इज द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, एनाटमी इज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बायोकेमिस्ट्री होता है उसका केमिकल एस्पेक्ट, सारे के सारे बायोकेमिकल एस्पेक्ट, तो वो सर्जरी से लिंक करते हुए पढ़ाया जाएगा, राइट। सो नेशनल मेडिकल काउंसिल वांट्स एमबीबीएस कोर्स टू बी कंडक्टेड इन इंडिया एग्जैक्टली इन दिस वे, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड हो और बच्चों के लिए इजी हो जाए फाइनली टू गेट स्पेशलाइज्ड। So even India wants now, NMC wants people to not just stay MBBS, और अगर वो MBBS सिर्फ रहते भी हैं तो they are so equipped, they are so knowledgeable with all the things that उनके लिए easy हो जाए to handle tackle patients and in a more efficient way। और दूसरा तो है ही कि ग्लोबली भी वो ज्यादा appropriate हो जाए, easy हो जाए उनके लिए बाहर के एग्जाम्स देना। फिर ये क्या, almost same thing which I've been telling, now the curriculum is competency based, now there's an exposure, clinical exposure first year से, they want to make it learner centric। तो पहले क्या था, एक लेक्चर की तरह जैसे अब हो रहा है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं सबके सब, ऐसा अब नहीं होगा। all the lectures are going to be in a very different format। अब क्या होगा, आप लोग सारे के सारे जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगे अपने टीचर के साथ, आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, देन देयर विल बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। सब टीचर्स फिजियोलॉजी के भी, सर्जरी के भी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, सब मिल के दे विल गिव यू अ कंप्लीट पैकेज कि क्यों कोई बीमारी हो रही है तो उसका बेसिस क्या है, वो क्यों हो रही है, और उसको कैसे उसको समझने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, उसको कैसे ठीक करना है। सो इट विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। पेशेंट और अच्छे से, अभी तो बहुत ही बढ़िया इंडिया
Indian doctors are supposed to be the best doctors all over the world. Even in US, they have earned great name and everywhere. Like I've worked in Saudi Arabia, I've been to UK and US. So Indian doctors are respected like hell because we are very hardworking people. हम लोगों को knowledge बहुत अच्छी है हम लोगों की, and even the colleges are great in India. और population ज़्यादा है तो by default also the people they tend to meet, they are good, and the good ones are only they are able to reach US. So अपने आप ही एक बन गया है कि इंडियन डॉक्टर्स आर मोर डिपेंडेबल. तो वहाँ के जो अमेरिकन हैं दे डिपेंड ऑन एन इंडियन डॉक्टर मोर देन एन अफ्रीकन अमेरिकन एज कम्पेयर टू देयर व्हाइट्स. तो ये नोन चीज है वहाँ पे that if you want to get fixed, you should go to an Indian doctor. That's what they say in US. Integrating subjects and organ system, like I was telling, pathology भी, physiology भी, सब आएगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनेगी जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज को समझना. अब इतना टफ एमबीबीएस इज नॉट बिकम लाइक सम रॉकेट साइंस नहीं रह जाएगा. फिर रोट लर्निंग होती है जिसमें आप रट रहे हैं कोई चीज, अब वो नहीं रहेगी. एवरीथिंग विल बी अ कॉन्सेप्ट बेस्ड, एवरीथिंग विल हैव अ व्हाई अटैच्ड टू इट. ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. व्हाई इज द वे टू गो नाउ, एंड दिस इज हाउ द लर्निंग गोना बी इन मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया. और अगर नहीं हो रही है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में तो वी आर हियर टू हेल्प यू. तो वो वाले कॉलेजेस में आप ज्वाइन करते हैं तो आप यू कैन ऑलवेज टर्न टू अस if you're facing problems. We can help you in every possible way to help you in the next exam. We'll be here to help you for USMLE, right? So good doctor बनने के लिए, and not just the exam writer. पास ही नहीं करना एग्जाम, just not passing the exam, but actually becoming a doctor who helps people, who treats patient, and who is a renowned person in the community. आपकी लोकेलिटी में किसी को आप यू मस्ट बी लुकिंग अप, तो वो बनने के लिए तैयारी है. तो किताबें क्या क्या जरूरी होंगी आपको पढ़ने के लिए. So there would be famous books, which you will be referring to, I can tell. And Balian Love is the Bible of surgery for MBBS people. So I would suggest people should stick to it. और एक इंडियन बुक भी है written by a Manipal professor, SK Bhattacharya, SKV, जिनको Balian Love में लगता है कि बहुत concise दिया हुआ है and they want more detail, they can refer to this book, Bhattacharya. And then there's a first aid step 1, which is very very bullet form book, and बहुत अच्छी किताब है. स्टेप 1 स्टेप 2 जो आपको सर्जरी ही नहीं बाकी जो भी बेसिस है, चाहे आप इंडियन एग्जाम्स ही देना चाहते हैं, पर अगर आप फर्स्ट एड स्टेप 1 पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ मोर ओपनिंग ऑफ योर रियलाइजेशन कि कैसे इंटीग्रेट किया हुआ है सब कुछ, द बेसिस, फिजियोलॉजिकल बेसिस एंड योर बायोकेमिकल बेसिस एंड ऑल द एनाटॉमिकल थिंग. तो बहुत इजी है, बुलेट फॉर्म है, कंसाइज है, कॉम्प्रिहेंसिव है. सो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फर्स्ट एड यूज फॉर यूएसएमएलई दो. पर मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं या कहीं पे भी आउटसाइड इंडिया भी ज्वाइन करते हैं एमबीबीएस, तो आई विल कीप these books for you to teach and to tell you and make best out of these. ठीक. अब आपको मोक्ष ऑनलाइन सेशन से क्या मिलने वाला है. सबसे पहले तो आपको आइडिया लग गया होगा when I introduce myself और tell you कि क्या मिलने वाला है. तो मेरे जैसे और बहुत सारे टीचर्स होंगे who would be teaching you other subjects like medicine, pediatrics, OBGYN, pathology and other subjects जो भी आपके MBBS curriculum का part है. और फिर ऑनलाइन कोचिंग होगी, और जिससे आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स है, कोई इश्यूज आ रहा है पढ़ने में, we will be here to solve them. We'll be available like 24/7. आप लोग you can just shoot an email and we'll respond and help you in every little way. कोई और इश्यूज हैं पढ़ाई के अलावा वो we can fix for you. You have counselors available who will guide you every step of the way like sir was telling. तो वो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है. एंड सो और बहुत आपको एक कम्युनिटी बन जाएगी if you really look at it, where people from various countries like 10 countries, they will have different curriculums. इंडिया का तो है तो मैंने बता ही दिया है, there's a big change here, पर उनका भी you will get to know how they deal with material out there, क्योंकि वो लोग भी पढ़ रहे होंगे. तो एक पूरी एक let's say it would be a big family having lot of people there where we can learn a lot of things, and it will be fun learning at Moksha, trust me, because बहुत countries से यहाँ से ये लोग भेज रहे हैं MBBS students, और उनको उनके dreams they are helping them realize their dreams. So I think it would be wonderful if even the Indian graduates जो government में भी जाते हैं rather, वो भी
अगर मोक्ष से जुड़े रहें तो उनको पता चलेगा कि ग्लोबली क्या हो रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल पॉइंटेड गोल्स तो हैं ही, गेटिंग यूएसएमएलई डन, गेटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, गेटिंग सुपर स्पेशलाइजेशन, people interested in getting to UK, people getting jobs in Dubai या फिर सऊदी अरेबिया, उसके लिए भी गाइडेंस पूरी रहेगी यहाँ पर। So there is something known as artificial intelligence based LMS। तो पूरा जो यहाँ पर पोर्टल है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि उसमें आपको बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, because they have their best softwares and best team who would help you get to the courses, to resource, जो भी रिसोर्स जहाँ पे भी अवेलेबल है आपको with a blink of an eye मिल जाएगा। तो ऐसा एक पोर्टल यू विल हैव एन एक्सेस टू। जो दूसरे हैं लोकल रनर्स हैं, वो तो अपना ही जो वो जानते हैं सो जानते हैं, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दे आर राइट फ्रॉम स्क्रैच विद यू, यू नो, फ्रॉम द पार्ट वेयर आपने 12th पास की और आपको एमबीबीएस मिल गया एंड देन यू आर हियर विद देम, पूरा एमबीबीएस इनके साथ, देन पीजी इनके साथ, देन सुपर स्पेशलाइजेशन। सो जस्ट इमेजिन what kind of variety, what kind of pura ek this is the whole race where you will find people in all the points and you can get help from those people who have already graduated, who are in the different steps of their career। कोई पोस्ट ग्रेजुएट रहेंगे तो उनके एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, एंड they'll have material for them। तो it will be a huge database, trust me। और फिर टेस्ट बहुत एक्सटेंसिवली लिया जाएगा यहाँ पर, जिनसे आपको इवेलुएट किया जाएगा कि आप क्या किस मॉल में पढ़ रहे हैं बाहर या यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका प्रोग्रेस है एंड हाउ यू आर बीइंग इवेलुएटेड, आप कहाँ पे डेफिशिएंसीज है। बिकॉज टेस्ट इज लाइक अ मिरर, इफ यू डोंट टेक देम यू वुड नेवर बी एबल टू सी द मिरर कि आप किस कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो टेस्ट तो बहुत जरूरी होता है वेन एवर यू आर रीडिंग फॉर सम स्पेसिफिक गोल, अपने आप को इवेलुएट करने के लिए। सो वी हैव सेट अप थिंग्स रियली वेल एज फार एज टेस्ट गो, और उससे फिर आपको हेल्प करेंगे। और डाउट सॉल्विंग, like I told, which will be a 24/7 support। You can shoot an email, we'll reply, you can you know, put your queries, you have these sessions, online sessions where you can ask questions। सबसे important thing which Moksh is telling is unlimited validity। so you just go on learning and keep taking support and help at a very affordable cost, right? तो माय मेथोडोलॉजी वुड बी, मेरा मुझे लगता है कि लेक्चर क्लास में ऐसा होना चाहिए, द कॉन्सेप्ट आर टॉट टू अ स्टूडेंट इन अ वे दैट वो उस कॉन्सेप्ट को पर्सनली रिलेट करें अपने से, वो जुड़े कहीं ना कहीं जाके कोई ऐसे लिंक से उनके जो दिमाग और दिल में है कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज कुछ रहती है हर एक की, बेसिक आपके बायो से कुछ है, वहां से जाके कुछ मैं जोड़ूं आपको, ताकि आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सको। अगर मैं कोई एक नया आइटम आपको रॉकेट साइंस समझाने लगूं तो ऑब्वियसली बिना लिंक किए तो इट विल जस्ट वैनिश, यू नो, आफ्टर फ्यू आवर्स। अगर मैं कितना ही बढ़िया टीचर हूं, जब तक मैं आपको लिंक नहीं करूंगा पर्सनली विद समथिंग यू ऑलरेडी नो उस आइटम को, वो कभी भी हुक नहीं हो पाएगा। इसलिए हुकिंग इज माई मेथड, कि हुक करना है, पहले जानना है कि आप क्या जानते हैं, एंड देन वहां पे जाके आई विल यूज सम सूचर, आई एम अ सर्जन सो आई थिंक ऑफ सूचर, आपको स्टिच कर दूं वहां से उस मटेरियल को आपके साथ, ताकि वो हमेशा आपके साथ ही रहे। फिर मेरे जो निमोनिक्स होते हैं वो ABCD जो भी आप बनाते हो, फर्स्ट अल्फाबेट लेके, वो आई डोंट लाइक देम। व्हाई? बिकॉज आपको वो ही याद करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और फिर एग्जाम में वो कभी याद नहीं आते। सो आई लाइक टू मेक निमोनिक्स फ्रॉम विच आर फॉर मेमोरी, बेसिकली फ्रॉम डे टू डे वॉक्स ऑफ लाइफ, जो आप रोजमर्रा में करते हैं, खाते पीते चीजें, मूवीज, वहां से लेके, एंड इट शुड बी स्टोरी टेलिंग की तरह होना चाहिए सारा कुछ, जिसमें हर चीज जो मैं बताऊं वो आपको याद रहे। बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट, यू नो, इतना टाइम दें, खुद भी पढ़ें, किताब खोलें, अंडरलाइन करें, बट अगर एंड में आपको याद ही नहीं रहता है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, यू नो, गिविंग डिवोटिंग सो मच टाइम। तो वो रिपीटेड लर्निंग में चला जाता है, आपको लगता है बार बार उसको सेशंस लेने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मेरे लेक्चर्स में ऐसा नहीं है, एक बार पढ़ा, आई विल स्टिच इट अप विद समथिंग यू ऑलरेडी नो, एंड देन जब भी आप जो जानते हैं ऑलरेडी उसको आप खींचेंगे तो आपको वो नया मटेरियल भी फ्रेश हो जाएगा। So the key concepts are based on more fun episodes and linked with some hilarious item। मेरा मानना है एंटरटेनमेंट तो कोई भी मूवी की स्टोरी तो यूं सुना देते हैं, बट अगर मैं चैप्टर पूछूं तो यू विल हैव लॉट ऑफ ब्रेक्स एंड दिस एंड दैट, so why not making a chapter like a movie story, like as if you watched the movie। तो मैं वो चाहता हूँ वो हर सर्जरी का चैप्टर हो जाए कि एक मूवी की तरह आपको याद रहे, आप किसी को भी कभी भी सुना सकते हो, बिकॉज वंस यू कैन रिलेट अ स्टोरी टू समवन इट इज गॉन फॉर, you know, permanent memory। This is what I feel।
So surgery is one of the key subjects you must be knowing. Surgery, कई लोगों को सर्जन बनना होगा जो सुन रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो उनके लिए तो what to say, like what's the weightage is their life, you know, कि उनकी जिंदगी यही बन जाएगी. बट एमबीबीएस डिग्री पास करने के लिए दिस इज वन ऑफ द की सब्जेक्ट, इज अ मेजर सब्जेक्ट. यूएसएमएलई करना है तो 40 to 45% पोर्शन होता है. अगर आपको दुबई के एग्जाम्स देने हैं तब भी वहां पर 50% चंक सर्जरी होता है. आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं और जाना है बाहर इंडिया से, तब भी आपको सर्जरी के क्वेश्चंस रहेंगे. यूके जाना है तब भी, इवन फॉर प्लैब यू विल हैव these lot of surgery questions. So surgery is an important topic, and but then I link up with every basic subject of yours, so things are going to stay for long. Like I said, that I want to make each topic of surgery like a movie that you watched, and I think that's it. Absolutely, sir. I have lots of questions already ready lined up for you from students. So Nice. I'll take up first question from Lalit. Lalit says, sir, how general surgery is different from other specialization, because he's hearing pediatric surgery, he's hearing cardiothoracic surgery. So what's the difference basically? Okay, general surgery is a specialty. Like MBBS, if the full form of MBBS you guys know, M is medicine, right? And B is the bachelor. Then again, B is the bachelor, and S is surgery. So you are bachelors of medicine as well as surgery. And this is MBBS is an Indian-based degree, and even in UK it's called MBBS, right? So you're bachelors, and then you become masters of surgery, which is general surgery in India. Then you super specialize in very specific areas like neurosurgery, brain की surgery, then endocrine surgery, thyroid, breast, diabetic कुछ करना है, adrenal glands में कुछ करना है, right? Bio से आप लोगों को ये सब पता है ना, endocrine parts. फिर आपको कार्डियोथोरैसिक, हार्ट की सर्जरी, फिर आपकी प्लास्टिक सर्जरी, कुछ भी स्किन से करना है, यू वांट टू मेक समवन प्रिटियर, और जो कुछ और ऐसी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होती है. देन यूरोलॉजिकल सर्जरीज, यूरो की सर्जरीज यूरोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं, राइट? Then there is something like more specific for babies. If you want to operate like little babies from weeks to months to 12 years, वो pediatric surgery होती है जिसमें. So general surgeon is a primary degree, is a specialization. Then all these specific areas, each organ system की surgery are super specialization, which is MCH, Master of Chirurgy. It's a Latin word जो super specialization होता है. It's a third degree after MBBS. MBBS, then MS, and then MCH. I hope I'm clear. कोई doubt इसमें अगर है तो पूछो. जी sir. Sir, next question interesting है, Raisha. So again, students have to understand. So Raisha is asking, sir, if I want to become a professor in a medical college after MBBS, do I still have to give the next examination? Definitely. Next exam is like USMLE of India. कुछ भी आप मेडिकल कॉलेज से पढ़ लो, अगर आप स्टैंडर्ड एक एग्जाम पास नहीं करोगे विच इक्वेट्स यू एज अ मेडिकल ग्रेजुएट, जो यूएसएमएलई बोर्ड होता है वैसे एक बोर्ड बन गया है ये नेक्स्ट. जैसे 12th स्टैंडर्ड बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, ये वो वाली बात होगी. 12th पढ़ने के बाद क्या सीबीएसई एग्जाम देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं. यू विल हैव टू टेक नेक्स्ट एंड गेट ऑन विद योर नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू. जो भी है वो, चाहे आप प्लेन एमबीबीएस रहना चाहते हो और जीपी प्रैक्टिस करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, जो बच्चों की में हो सकती है स्पेशलाइजेशन, जो मेडिसिन में हो सकती है, जो सर्जरी में, जो गायनेकोलॉजी में हो सकती है, जो विमेन हेल्थ देखते हैं, या चाहे वो ऑर्थो हड्डी का हो सकता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बोन्स का, और फिर और ऐसे स्पेशलाइजेशन अलग अलग स्पेशलिटीज में होते हैं. तो नेक्स्ट तो देना ही है. और प्रोफेसर बनने के लिए यू विल हैव टू हैव अ पीजी एटलीस्ट, बिकॉज एमबीबीएस पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट्स हैं वेरियस, तो वो आप इसमें कर सकते हो. आपको कोई ना कोई स्पेशलिटी तो होनी ही है. You cannot, without plain MBBS cannot be a teacher. You will have to have some specialization. Next question, sir. Abhi Sonali is asking. She's asking, from which year will the surgery subject come? First year से. ये NMC अब जो आया है न्यू करिकुलम, उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है 2019 बैच आपके एक सीनियर बैच से, कि फर्स्ट ईयर से ही सर्जरी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. देयर इज अ फाउंडेशन कोर्स which we have already taken for 2019 batch in our medical college, और वो लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं what surgery is all about, and उनको early exposure, this is now a new recommendation for new curriculum in medical colleges. तो फर्स्ट ईयर से आपको सर्जरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है.
पर इम्पोर्टेंट होगा। आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके साथ रिलेट करेंगे हर चीज को, सर्जरी को, कि सर्जरी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। कोई फिजियोलॉजी की चीज पढ़ाई आपको, हार्ट की फंक्शनिंग बताई, उसमें बताएंगे कि क्या सर्जिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, कैसे जो चीज पढ़ाई आपको फिजियोलॉजी में वो किस तरह आप सर्जिकल ब्रांच जब परस्यू करेंगे या एग्जाम देंगे या आप सर्जरी पढ़ रहे होंगे तो आपको यूज में आएगी ये चीज। ये हो गया, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई। जी sir, absolutely. Sir, next question is again from Lalit. He's asking, sir, during surgery अगर complications वगैरह हो जाती है तो how do you overcome it and mentally and how do you, मतलब challenges आ रही है because not every surgery will be successful, but then how do you prepare yourself accordingly? सबसे पहले यूएस में सर्जरी जो है दैट द टॉप मोस्ट ब्रांच, वहां पे यूएस में सर्जरी मिलना, इवन यूके में मिलना इज सबसे डिफिकल्ट। बट इंडिया में इट्स द रिवर्स। यहाँ पे रैंक पीछे आती है जब एमबीबीएस कर लो आप, और नीट पीजी में रैंक पीछे आती है तब सर्जरी मिल जाता है यहाँ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लॉ सूट्स नहीं है, और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो टैकल हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। एक और सर्जरी लगती है अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया, अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया तो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। इट्स नॉट बहुत कुछ ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेशन तो आता ही है, इट्स अ ह्यूमन बॉडी। ऐसे तो मेडिसिन में भी आता है, कोई मेडिसिन दी, उसका रिएक्शन हो गया, ठीक नहीं हुआ, वर्स हो गया, रॉन्ग डिजीज के लिए मेडिसिन मिल गई, ऐसे सेम चीज मेडिसिन में भी होती है। पर सर्जरी से एवरीवन इज लाइक स्कैर्ड, यू नो, ये तो ऑपरेट हो गया, खुल गया एब्डोमेन और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो इट लुक्स बिग बट है वही सेम चीज। तो वैसे ही हम द वंस हु आर एक्सपर्ट इन सर्जरी, इफ यू प्लान टू बिकम अ सर्जन, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो, हर कॉम्प्लिकेशन का हल होता है। एंड थिंग्स आर वेरी इजी वंस यू लर्न इन अ गुड कॉलेज, वंस यू लर्न फ्रॉम अ गुड पर्सन, गुड टीचर, तो आपको कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं लगती, यू कैन ऑलवेज टैकल इट। कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है अब के टाइम में, वी आर टॉकिंग 2020 हियर, कि कोई कॉम्प्लिकेशन टैकल ना हो। हर कॉम्प्लिकेशन का हल है, हर कॉम्प्लिकेशन को ठीक किया जा सकता है। Next question is from Solani. Sonali is saying, see, lots of students are saying USMLE is very tough. So नो इट्स what do I नॉट, do यही about it? तो गलत फहमी है। यूएसएमएलई को आपको, यू हैव टू बी अ स्मार्ट लर्नर। आपको ये देखना है कि किस तरह से यूएसएमएलई को टैकल करना है। बहुत इंडियन ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो पढ़ते रहते हैं अपने हिसाब से, बिकॉज सबसे पहले तो अंदर घुसना लगता है कि इट्स लाइक बहुत बड़ा टास्क है, इतनी एनर्जी उसमें लग जाती है एक गवर्नमेंट कॉलेज में या इवन बाहर के किसी कॉलेज में पहुंचना, या प्राइवेट कॉलेज में भी फॉर दैट मैटर पहुंचना, कि पीपल बिकम रिलैक्स्ड एकदम आके, सो दे शट देयर माइंड्स अप। वो कहते हैं चलो खत्म हुआ, अब तो बस बन ही जाएंगे डॉक्टर। ऐसा नहीं है। वंस यू आर इनसाइड यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पागल बने रहो पहले जैसे ही, हमेशा टेंशन में रहो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट स्टे इन टच विद पीपल हु विल कीप यू ऑन ट्रैक। जैसे मोक्ष का काम है, यू नो, जस्ट स्टिक अराउंड विद यू लाइक अ रॉक, और आपको बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, आपको इंकरेज करते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं इन राइट डायरेक्शन। तो चीजें टफ नहीं होती, नहीं लगती। जैसे वही पहला वाला क्वेश्चन था ललित का कि कॉम्प्लिकेशंस का क्या, तो कॉम्प्लिकेशंस तो लाइफ में भी हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। और अब 2020 में वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो मच इज गोइंग ऑन, पीपल आर ट्राइंग टू बिकम इमॉर्टल एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें जो है ना, अब प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स है नहीं रियली, इफ यू लुक एट देम। हर चीज का सोल्यूशन है, इट्स जस्ट द हाउ यू लुक एट इट। अगर यूएसएमएलई को अब इस तरह से एक हौवे की तरह देखेंगे तो obviously it is the toughest thing on earth. Yeah, of course, even for an American it is, जिनके लिए like things are so easy, you know, once you are in a US मेडिकल कॉलेज जो इतना करोड़ों रुपया खर्च करके, जैसे सर ने बताई है, आप घुस सकते हैं, उनके लिए भी टफ हो जाता है, और उन्हीं उन्हीं के लिए इजी भी है, बिकॉज दे नो हाउ टू डू थिंग्स। जब व्हेन यू नो हाउ टू डू थिंग्स, थिंग्स आर नॉट टफ एनीमोर। Absolutely. Sir, Sohail is asking, sir, what about emergency medicine? Basically, emergency surgery is asking, but what is meaning is the field of emergency, you know, that way. राइट, अभी यूजी करिकुलम का भी एनएमसी से हमें लेटर आ रहा है मेडिकल कॉलेज में कि नाउ दे वांट टू सेट अप दिस एज अ स्पेसिफिक ब्रांच एंड अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट, अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग अ मेडिकल कॉलेज। तो उसके लिए काफी अभी चल रहा है, मतलब आज ही चल रहा था, लेटर्स आ रहे थे एनएमसी से। तो एक न्यू ब्रांच है, ये है तो न्यू नहीं इंडिया में, तो अमेरिका में तो सालों से है, एंड इट्स ऑलमोस्ट जस्ट लाइक एनी अदर ब्रांच। पर इसमें क्या है, आप इमरजेंसी से डील करते हो बस, देयर इज नथिंग लाइक रिलैक्स टाइम इन इमरजेंसी मेडिसिन। हमेशा इमरजेंसी ही है, कोई चाहे मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे गायनी की इमरजेंसी है, चाहे ऑब्स की इमरजेंसी है, चाहे सर्जरी की। इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में वो सिखाया जाता है हाउ टू टैकल इमरजेंसी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फर्स्ट एड, आई एम टॉकिंग ऑफ
fixing when a patient comes in an emergency. बाद में वो सर्जिकल पेशेंट बन जाता है once he is operated and everything, बट जब वो आता है इमरजेंसी में तो वो इमरजेंसी मेडिसिन के ग्रेजुएट्स उसको हैंडल करते हैं. तो वो अब सेटअप हो रहा है इंडिया में. दे आर कमिंग. बेसिकली हो क्या रहा है, जो अब नया करिकुलम है, दे आर बेसिकली मेकिंग इट मोर लाइक यूएस. तो उसके एट पार लाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पे सालों से इमरजेंसी मेडिसिन है, जो एक अलग ब्रांच है जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इन अ मोर लेट्स से इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर. पहले क्या होता था, जो आप हॉस्पिटल्स भी देखे ही होंगे आप लोग सब, योर एडल्ट्स एंड एवरीथिंग, सो यू नोन व्हाट आई एम टॉकिंग, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, इमरजेंसी में जाते हैं, पर वहां पे कौन बैठा होता है? एक एमबीबीएस बैठा होता है, फिर वो फोन करता है अलग अलग स्पेशलिटी के लोगों को. अब ऐसा नहीं होगा. अब एक डेडिकेटेड ब्रांच बना दी जाएगी हर मेडिकल कॉलेज में, जो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए ट्रेन करेगी लोगों को, राइट? तो वहां पर किसी अलग, वहां पे कोई प्लेन एमबीबीएस नहीं बैठेगा अभी, वो क्वालिफाइड पर्सन होगा इन इमरजेंसी मेडिसिन, हु विल देन डू थिंग्स ऑन देयर ओन. ऑपरेट करेगा या मेडिकल मैनेजमेंट देगा या फिर डिलीवरी करा देगा, एंड देन द गायनी पीपल एंड ऑल पीपल वुड बी कॉल्ड, या उनके साथ मिलके करेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स द केस इज. ठीक. Absolutely, sir. So, sir, questions to end ho gaye nahi, but we understand time constraint hai. So, students, we will definitely, cater to any further questions as well. But it's just that, you will have opportunity to interact with Dr. Sachin again on the Moksha platform. So, definitely, आप first of all अभी ये priority clear रखिए कि एक अच्छा सा मेडिकल स्कूल, recognized medical school आ जाए. Once that is done, definitely, all the team of faculties are there with you to support you in this journey. Thank you very much, sir, to be part of this session. Okay. Students are also thanking. Daisha is thanking you. Yeah, Yashashvi, everybody is thanking you. It's a good motivational session, and definitely we will look forward. Once they join the program, so that right from first year they can interact with you and try understand the correlation. So Akriti, Royston, everybody is kind of thanking you. So thank you very much, sir, and thank you, students, for part of this session. See you again. So wish you all the best, students, and thank you very much, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Chirag.